Hi all. Welcome to my channel. Disclaimer. I am not registered with SEBI and there is no trading and investment advice for you. Consult your financial advisor for any investment and trading. Like, share and subscribe RS Trading. Hi all. Welcome to Hello friends, welcome to my channel. This is Raghav. So today we will cover wave theory part 4. This is the wave theory part 4 and we will cover the corrective trends. In the previous 3 part we have discussed the dominant trend, their characteristics on both the side when markets are rising and markets are falling. And today we will discuss the wave, the corrective trends, which is 3 wave trends. Previously we discussed the 5 wave. Now today we will discuss 3 wave. So this is the when markets are rising, then the wave form in 5 waves. Means wave 1, 3, 5 is impulse wave as we discussed, and 2 and 4 are corrective waves. Then after market making top off, then it corrected in 3 waves, that is A, B and C. So जब मार्केट 5 वेव का जो एक ट्रेंड है उसको फॉर्म करने के बाद फिर जब करेक्शन होता है तो वो 3 वेव के फॉर्म में होता है. सो करेक्टिव ट्रेंड 3 वेव के फॉर्म में होते हैं, जैसा कि इस चार्ट में हमने देखा है कि ये 3 वेव के फॉर्म में करेक्ट हो रहा है. एंड दिस इज डोमिनेंट ट्रेंड विच वी ऑलरेडी डिस्कस, which is in 5 wave 1, 2, 3, 4, 5, and this is corrective wave 1, A, B and C, which is showing in graph A, B and C. Then corrective trends consist of 3 waves. Basically 3 wave corrective trends starts when 5 wave dominant trends ends. मतलब जब मार्केट का एक ट्रेंड कंप्लीट हो जाता है इधर इन द अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन. अभी हम अप डायरेक्शन में देख रहे हैं, आगे आने वाले स्लाइड्स में हम डाउन वेव में उसको देखेंगे. सो आफ्टर मार्केट रैलीज इन 5 वेव बेसिक्स, 5 वेव सीक्वेंस, मार्केट टॉप इज मेड एंड मार्केट एंटर इन अ न्यू फेज, दैट इज 3 वेव डाउनवर्ड करेक्टिव फेज, दैट इज ए बी सी. एंड द वेव ए एंड सी आर इम्पल्स वेव्स. ये जो है करेक्टिव है क्योंकि ये करेक्टिव फेज है, तो बट ऑब्वियस है ये इम्पल्स होंगे, मतलब इनमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कंपेरेटिवली मोर होंगे कंपेयर टू वेव बी. एंड वेव बी इज करेक्टिव वेव. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ प्रीवियस ट्रेंड, दैट वाज डोमिनेंट ट्रेंड, तो उसके प्रीवियस वाले ट्रेंड में, तो दिस इज करेक्टिव ट्रेंड, बट दिस इज करेक्टिव वेव एंड दिस इज impulse wave. Now this is the 3 wave which was when market was falling and the new phase started. Then this is A, B and C. So this is the dominant trend and this is corrective trend. Means when markets are falling in 5 waves, 1, 2, 3, 4, 5, then this is dominant trend, and then after rally completed the market start A, B, C, that is corrective trends, in this direction. So after market decline in basis of 5 wave sequence, market bottom is made and market enter in a new phase, that is 3 wave upward corrective phase, that is A, B and C. And the wave A and C are what? Wave A and C are impulse waves and wave B is corrective waves. So जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में कंप्लीट होता है और वो फॉर्म करता है 1, 2, 3, 4, 5 के वेव में, उसके बाद करेक्टिव ट्रेंड्स आते हैं A, B एंड C, जिनमें A इम्पल्स वेव होती है और जो B है वो करेक्टिव वेव होती है. अब आगे के स्लाइड्स में हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करेंगे इन बोथ द वेव्स. व्हेन मार्केट्स आर राइजिंग एंड फॉर्म अ न्यू, व्हेन मार्केट्स आर राइजिंग देन करेक्टिव
trend in 3 waves, and when markets are falling, corrective waves in 3 waves. So this is the 1, 2, 3, 4, 5. When markets are rising, then characteristics of corrective waves after market rallies in basis of 5 wave sequence. So this is dominant trend, which we already discussed. This is corrective trends. So wave A, this is wave A. So wave A is the beginning of new bear market. Means once the rally completed in the 5 wave trend, that is dominant trend, then wave A is the beginning of new bear market. Fundamental news is still positive. उस समय फंडामेंटल का जो न्यूज़ होता है स्टिल पॉजिटिव होता है, मार्केट में सब कुछ अच्छा दिखता है, बट मार्केट हल्का सा करेक्ट होता है तो लोगों को लगता है छोटा मोटा ऐसे ही करेक्शन है या जो भी है, उसमें लोग इतने पार्टिसिपेट नहीं होते. एंड नो बडी इज रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट मार्केट्स कैन डिक्लाइन. सो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स है, दे आर नॉट पार्टिसिपेंट्स. सो ओनली few players are participants which are smart, that is smart money. And the wave B is basically a small rally which gives the feeling that bull run has started, but prices failed to make new high. Volume in wave B is lesser than volume A. Means इसके बाद मार्केट जब अगेन राइज होता है तो लोगों को लगता है कि नहीं रैली अगेन स्टार्ट हो गई है, बट जो उसकी वॉल्यूम होती है वो वॉल्यूम ए के वेव ए के कंपेयर में कम होती है, और जो वेव बी है वो जो प्रीवियस हाई है उसको क्रॉस नहीं कर पाता और वहीं से वो रिवर्स हो जाता है. सो वेव सी, हेयर प्राइसेस अगेन स्टार्ट डिक्लाइन एंड वॉल्यूम ऑल्सो पिकअप. जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता और वहाँ से अगेन डिक्लाइन होता है तो लोगों कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं रैली अब एंड हो चुकी है, अब न्यू फेज स्टार्ट हो गया, दैट इज करेक्टिव ट्रेंड. एंड एवरीवन रियलाइज दैट मार्केट डिक्लाइन इज लाइकली टू कंटिन्यू एंड हेंस मार्केट पार्टिसिपेंट ऑन द सेल साइड इंक्रीज. और आफ्टर क्रॉसिंग दिस ए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंक्रीजेज इन द वेव सी. एंड नाउ दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेक्टिव वेव्स आफ्टर मार्केट डिक्लाइंस. तो हमने पहले ही वाली स्लाइड में देखा कि जब मार्केट राइज करता है उसके बाद जो करेक्टिव वेव फॉर्म होते हैं तो कैसा बिहेव करता है. और अब इस स्लाइड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब मार्केट डिक्लाइन होके जब उसका फेज एंड हो जाता है तो उसके बाद जो करेक्टिव वेव फॉर्म होते हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो दिस इज वेव ए. सो वेव ए इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू बुल मार्केट. फंडामेंटल न्यूज इज स्टिल नेगेटिव एंड नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट मार्केट कुड रैली. यहाँ पर फंडामेंटल अभी भी नेगेटिव है बट रैली स्टार्ट हो चुकी है तो लोगों को बिलीव नहीं होता, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इसमें कम होते हैं. ओनली स्मार्ट मनी और स्मार्ट प्लेयर दे डू पार्टिसिपेट्स. एंड वेव बी, देन after completion of wave A, that is wave B. Wave B is basically a small decline. मतलब wave B जो होता है उसमें फिर से again small decline होता है which gives the feeling that decline has again started. और लोगों को ये फील होता है कि नहीं decline again start हो चुका है. And but price failed to make new low and volume in wave B is lesser than volume A. But जो प्राइस है वो जो प्रीवियस लो है उसको क्रॉस नहीं कर पाता और इसका जो वेव B का जो वॉल्यूम है वो कंपेरेटिवली वेव ए के कंपेयर में कम होता है. इसका मतलब लोगों को कन्विंस नहीं है कि ये मतलब ट्रेंड, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूअस है बट वॉल्यूम पिक नहीं होता और प्राइस यहाँ से इसके लो के पहले से रिवर्स हो जाता है जिससे वेव सी फॉर्म होता है. तो वेव सी, व्हाट इज वेव सी? वेव सी, हेयर प्राइस अगेन स्टार्ट राइजिंग एंड वॉल्यूम ऑल्सो पिकअप्स. वेव सी में वॉल्यूम पिकअप होता है एंड एवरीवन रियलाइज दैट मार्केट रैली इज लाइकली टू कंटिन्यू एंड हेंस मार्केट पार्टिसिपेंट ऑन द बाय साइड इंक्रीज. और यहाँ पर बायर जो साइड है, बाय साइड में वो पार्टिसिपेंट इंक्रीज हो जाते हैं और जो इस रैली को थोड़ा आगे तक ले जाते हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ हमने समझा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
characteristics of corrective trends. Now in further slides we will discuss the kind of patterns and various charts which we will cover in next slides. So for friends, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे. ओके, थैंक्स. अगर आपको एक कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज़ राघव. So today we will cover wave theory part 4.